Thank you so much, Mr. Shashir, means sharing this kind of platform where we can raise our put up concerns and put the problems. Thank you so much, Mr. Shashir. I've never known about this. Yesterday only I've come to know that you're having some platform where we can share the problems. Pleasure, sir. I'm having almost 18 years of experience in job. In from 2011 to 17, I was heading one of the Russian MNC company who into a payment solution like Paytm with the name of PayPal Services Private Limited. So I was heading that company, and I've took that company from 10,000 rupees business to 30 crore of monthly business. So at that point of time, it's actually I thought that I can make more money instead of salary. So I've started my own company in 17, and I took to a level of revenue A stage. I was making some money, but two mistake I have done. My all technical things actually it was outsourced. Okay. So I was in a risk of losing my data, the durability, because every time I have to approach them that because they have many clients almost like me. They were developing things for 100 of companies. So my main problem is every time I have to approach them, request them to change anything, to integrate any API, to integrate, to change something in UI. So it was very difficult to approach them. They were asking money like anything. So I was a salesperson. I was actually a business analytical person who can run the company, but in technical I was very weak that time. My second problem is I was alone. So that was a mistake. I had to do everything by my own. So I have lost almost my 20 lakh rupees. I have gained some money by selling it, but then I started a job in Oyo Hotel. I was managing a traveler's business. But now actually again I am associated with Bada Business, a Dr. Vivek Bindra initiative, and taking care of nationally their channel partner. They're taking care of sales operation for their 120 channel partner across India. But again, I'm thinking that the money which I'm making right now as a salary is not sufficient, and I want to fulfill my dreams which I have seen in 2017. So now I have found two of my friends, which is one is very good at hacker. What you mentioned, hacker. He's a technical guy. He's developing all the things again from the scratch, and it will be completed in next 1.5 months of time. Second, I found one person who is actually will take care of my sales, the offline sales and online sales, and I'm a hustler who's monitoring everything from starting from to end. So I'm having 2-3 problems, and I'll ask you one by one that problem. The first problem is I'm afraid of sharing my business idea in a public domain. Matlab, if I'll approach to an investor, to my friend and family members to gain seed funding or any kind of help from them, a mentorship probably you can say. So I'm very afraid. I don't know how to secure my business because yes, I have 2-3 competitors, but I have one unique USP which I have seen in Kazakhstan when I visited there in my Russian MNC. तो वहाँ पर वो चीज़ थी, but I'm really scared कि how to showcase, how to control, how to secure my business idea. मैंने market में if I'll in 1.5 month of time, suppose if I'll roll out this project in market, तो वो एकदम से तो बड़ा बनेगा नहीं. It will take time. और जैसे मैं उसको मार्केट में डालूंगा, मुझे ये डर है कि शायद कोई कंपटीटर उसको देख लेगा और इमीडिएटली because they have number of customers with them, they will immediately roll out this project at their own. So this is my first question, Mr. Shashir. देखिए, जब भी कोई ये ऐसी बात करता है कि मैं आइडिया को शेयर नहीं कर सकता या मेरे पास कोई सीक्रेट सॉस है, तो मुझे ना वो एक अफीम चाय वाला की याद आ जाती है. ठीक है, वो चाय में अफीम डालता था, बनारसी चाय वाला कानपुर शायद. हाँ, तो अफीम चाय वाला मैं नाम नहीं लूंगा, बस उसको ऐसी इसलिए वो चाय में अफीम डालता था और दुनिया पागल चाय पीने के लिए लोग आते जाते थे. अच्छा, वो सीक्रेट सॉस किसी को नहीं पता थी, है ना. एक दिन उसने खुशी में बता दिया कि भाई मैं तो अफीम डालता हूँ. जूते भी पड़े और काम धंधा सब बंद हो गया. तो कहने वाली बात यह कि अगर एक कुछ ऐसी चीज होती है, अफीम है, तो किसी को बताने का कोई फायदा नहीं है. उसके अलावा सारे आइडियाज शेयरेबल होते हैं बिकॉज आइडियाज हैव नो वैल्यू, जीरो वैल्यू. आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन की वैल्यू है. आइडियाज तो दुनिया के पास हैं और
मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बोलते हैं सर फेसबुक मैंने सोचा था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, फेसबुक उन्होंने भी सोचा होगा और मेरे जैसे लोगों ने भी सोचा था, राइट। जो आज आप वो देख रहे हो ना, नई जो ट्रेन आई है जो मैग्नेट पे चलती है, ट्यूब वाली, राइट, दैट मैंने ये सोचा था बचपन में कि मैं 2 मैग्नेट से ट्रेन को हवा में उठा दूंगा, और एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया, समझ रहे आप। तो नोबडी, सबके पास आइडियाज आते हैं और मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड बाय द राइट पर्सन, ठीक है। और इसका मल्टीप्लायर है, गुड आइडिया मल्टीप्लाइड बाय गुड एग्जीक्यूशन बाय द गुड पर्सन इज ऑलवेज सक्सेसफुल। लेकिन इसमें से एक भी अगर बैड हो गया तो मल्टीप्लायर नेगेटिव आएगा, आउटपुट विल बी नेगेटिव। पर्सन खराब तो भी नेगेटिव, आइडिया खराब तो भी नेगेटिव, और टाइम खराब तो भी नेगेटिव। देयर आर सर्टेन आइडियाज व्हिच आर अहेड ऑफ द टाइम, जब किसी को कुछ समझ नहीं आता, राइट। और कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो टाइम के बहुत पीछे होते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी चली गई, ऐसा कुछ चला गया। तो आप, और सबसे बड़ी खराब बात है, यू डोंट इवन हैव एनीथिंग टू पेटेंट द आइडिया। कुछ नहीं है ऐसा सिस्टम, हो भी नहीं सकता, राइट, क्योंकि आइडिया ही है वो। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ प्रोसेस आउट ऑफ इट एंड गेट इट पेटेंटेड, or you can create a product. If it is a product, you can get it patented. Most important part, because that is something that can protect you. The moment you get a patent, if it is really really good, if you think that this can change the world, right, अगर ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि दुनिया बदल सकता है, तो आप सबसे पहले उसको इंडिया में पेटेंट कराइए, फिर चाइना में कराइए, और फिर यूएस में कराइए, राइट, क्योंकि ये चाइना वाले सबसे पहले कॉपी मारते हैं, ठीक है, अगर बहुत ही अच्छा कुछ है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक्चुअली ना ऑलरेडी इसको रोल आउट किया था, और रेवेन्यू जहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि 50,000 से 5 लाख का मंथली रेवेन्यू होना चाहिए, मैं वहां तक पहुंच भी गया था। बट लेकिन बिकॉज ऑफ मैं अकेला था और वो सारा थर्ड पार्टी डिपेंडेंट था टेक्निकल चीज, तो आई स्टॉप दैट। आई डू नॉट वांट टू लूज द डाटा, तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया वहां पे। अब वो दोबारा सब कुछ दोबारा से मैं बना रहा हूँ विद मेरे पास 2 और डायरेक्टर्स हैं कंपनीज के, उनके थ्रू उसको बना रहा हूँ मैं। तो अब मैं डरता हूँ कि अब मैं दोबारा से वो गलती ना करूँ। मतलब देखिए, वो भी एक गलती है कि आप पूरा सीटीओ पे डिपेंडेंट हो जाओ, उससे बड़ी गलती तो कोई भी नहीं है। सीटीओ या किसी पे भी, किसी व्यक्ति विशेष पे कभी भी पूरे 100% डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और वो हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत करते हैं। दूसरा, हम किसी पे मल्टी स्किल भी कराना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं भाई यही बंदा सेल्स भी कर लेगा, पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैंप लगानी है तो वो भी कर लेगा। हम उसको बोलते हैं अरे कस्टमर आया, जरा उससे भी बात कर लो, परचेज भी कर लो, राइट। सो यू गिव एवरीथिंग, आपकी तो पूरी चाबी तो आपकी उसके हाथ में दे देते हो, वो गलत है। कीप एवरीथिंग में, आपको जो मेजॉरिटी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना, वो अपने पास रखना है, राइट। तो वो जो राक्षस की जान तोते में ना, वो तोता अपने पास संभाल के रखना है, नहीं वो मिल गया तो वो फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे सब। दिस इज रियलिटी, ग्राउंड फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। और बहुत सबके साथ होता है, वो फाउंडर्स में ऐसा ही होता है। दूसरी बात, जो आपका ड्रीम है वो सबका ड्रीम नहीं होता। आप जिस चीज को आप किसी से पूछोगे कैसा लगा, वो बोलेगा अच्छा लगा, लेकिन वो शायद कभी भी उस तरह से एसोसिएट नहीं हो सकते, राइट, कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो उनका सपना नहीं था, राइट। तो बेटर है ऐसे लोग ढूंढे जिन्होंने सिमिलर सपना देखा हो, सिमिलर ड्रीम देखा हो। एल्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। दे हैव मनी इन द माइंड, और हर बार पैसा नहीं आता है, हर बार तो नहीं आता है, कई बार बहुत कंसिस्टेंटली हमें काम करना पड़ेगा। तो ये रही बात आपकी उसकी। अब आइडिया पे वापस आ जाते हैं। तो आइडिया आप अगर किसी के साथ डिस्कस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप एनडीए कर लेंगे, एनसी-एनडी एग्रीमेंट कर लेंगे, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो आइडिया किसी और को बता देगा, वो कर लेगा, चाचा के नाम से कर लेगा, ताऊ के नाम से। जिस कुछ सच में बहुत बढ़िया चीज है ना, तो कोई किसी को नहीं बताएगा। आप समझ रहे हो? जैसे वो आपको पता है वहां फला जगह खजाना पड़ा है, तो आप किसी को बताओगे थोड़ी, है ना? You have to hide it. If it is really really good, you have to execute it. खुद ही जाना है, खुद ही निकालना है, सब कुछ करना है। But fortunately और unfortunately ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। There was a client, मेरे एक क्लाइंट थे जो फंडिंग के लिए आए थे। उन्होंने ऐसी वैक्सीन बनाई थी जो एक बार
एक इंजेक्शन में 5 बीमारियां दूर कर दे, इंक्लूडिंग कोविड के बाद की बात बता रहा हूँ, राइट। उनको कोई फंडिंग देने के लिए अच्छे इन्वेस्टर्स तैयार नहीं हुए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इतनी अच्छी चीज जिसकी डिमांड और औरों से बेहतर, राइट। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ हमने बात करी, मैं ऑर्गेनाइजेशंस का नाम नहीं लूंगा, फैमिली ऑफिसेस के साथ बात करी और ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ बात करी जिनका काम ही यही है, जो बड़ी कंपनीज है जो वैक्सीन और इन सब फार्मा से रिलेटेड है, उन्होंने भी मना कर दिया। द रीजन वॉज वेरी सिंपल कि ये बना तो लेंगे लेकिन इन पे विश्वास कौन करेगा, राइट। मार्केट जब पहली वैक्सीन आई थी इंडिया में तो किसी ने लगवाने को राजी नहीं था, विश्वास नहीं कर रहे थे। अब तब भी ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज है तो विश्वास कर लिया लोगों ने। बट when something which is not so known comes into the market, it's very difficult for the consumer to trust, and that आपका सारा पैसा उस ट्रस्ट को बनाने में लग जाएगा, जो कि स्टार्टअप को कभी नहीं करना चाहिए। स्टार्टअप को सिर्फ डिसरप्ट करना है। डिसरप्ट क्या करना है कि प्रोडक्ट तो देखो बड़े वाला जैसा है जो लीडर का है, मैं सस्ता दे रहा हूँ, राइट, तो आपका सब ले लेंगे क्योंकि पैसे की सबको शॉर्टेज है, मिडिल क्लास को खासकर बहुत शॉर्टेज है, राइट, और मासेज मिडिल और लोअर मिडिल क्लास। वेल्थ लाइज, आपके विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं, है ना, मैं भी उनकी बात को मानता हूँ कई बार। वो बोलते हैं वेल्थ लाइज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, और बिल्कुल सच्ची बात है, सत्य है। वेल्थ जो है, 1 रुपए का जो गुटखे का पाउच बेचता है वो ज्यादा कमाता है क्योंकि उसका 40% मार्जिन है। कोई पूछ नहीं रहा, 1 रुपए का लोग खरीद के खा के थूक देते हैं, राइट, यू गेटिंग माय पॉइंट। उसका बार बार खरीदा जाता है क्योंकि वो थूक दिया खा के। बट व्हेन यू गो एंड बाय 1000 रुपीज प्रोडक्ट और 10,000 रुपीज प्रोडक्ट, आप 10,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदोगे, आप 50 तरह के फीचर पूछोगे, मार्जिन देखोगे, और उसमें मार्जिन कुछ नहीं है। मोबाइल फोन आप जो खरीदते हो उसमें 4-5%, 8-10% से ज्यादा मार्जिन किसी को नहीं मिल पा रहा, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वेल्थ लाइज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जब हम इस तरह का कुछ काम है तो हमारा काम क्या है, हमें कोशिश करनी है कि किसी बड़ी कंपनीज का जो प्रोडक्ट चल रहा है वो सिमिलर बना लें, बजाय कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी होगा तो शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंज्यूमर नहीं करेगा। तो आपको मार्केट, इसीलिए हम टैम सैम सॉम सब देखते हैं कि मार्केट कितनी बड़ी है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी नहीं है या शिफ्ट करने में आपको बहुत मुश्किल आएगी तो अभी रुक जाना, राइट, इट इज नॉट द राइट टाइम। क्योंकि जिसने सबसे पहले बताया था ना दुनिया गोल है और सूरज गोल है, उसको फांसी देती थी, ये तो बकवास कर रहा है। नोबडी अंडरस्टैंड्स, पीपल डोंट, जब वो कोई अहेड ऑफ द टाइम चीज आ जाती है लोग उसको समझ नहीं पाते, राइट। बहुत 90s के अंदर, 98, 99 के अंदर 2000 तक एआई में बहुत सारे आइडियाज और कंपनीज आई, उनको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, कंज्यूमर ने नकार दिया, बाहर कर दिया। इट वाज अहेड ऑफ द टाइम, किसी को समझ कुछ नहीं आया और वो सारे प्रोडक्ट्स बंद हो गए, राइट। उससे घटिया प्रोडक्ट्स की आज फंडिंग हो रही है और अच्छे चल रहे हैं, बिकॉज अब अवेयरनेस हो चुकी है, सब एवरीबडी फॉलोज द ट्रेंड, राइट। ओनली लेस देन 1% ऑफ द पीपल कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, लेस देन 1%, और वही अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन पाते। तो आप तो वो समझ लोगे, आपका कंज्यूमर नहीं वो प्रेडिक्ट कर सकता। सो डोंट गेट अहेड ऑफ द टाइम। वी एज अ फाउंडर, हमें बहुत प्यार होता है अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने आइडियाज के साथ, और हम बहुत पैशन के साथ काम करते हैं। कोई बोलते ये नहीं चलेगा तो बुरा भी लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, नहीं क्यों चलेगा, हमने तो इतनी मेहनत करी है ना। तो मैं बड़ा केयरफुल भी रहता हूँ ये बताने में, एंड आई ट्राई टू बी एज डिप्लोमेटिक एज पॉसिबल। बट कुछ चीजें होती हैं जो अहेड ऑफ द टाइम है। तो मैंने आपका आइडिया नहीं सुना है, बट मैं आपको ये जरूर सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी हो रहा है ना तो आप जरूर देख लेना, इसके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट अगर बाजार में है तो बढ़िया है, नहीं है तो वो काम करो जिसका सिमिलर प्रोडक्ट बाजार में है, फटाफट से बेच पाओ, ज्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े बेचने में। प्रोडक्ट हमेशा वो अच्छा होता है जो फटाफट बिके, राइट, मार्जिन कम। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं इसको लॉन्च करूंगा ना ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो आप ये मान के चलेगा सर, रेवेन्यू बी स्टेज जो आप बताते हैं, सोर्स ऑफ फंड, मतलब जो आपके फंडिंग टेबल के हिसाब से वेबसाइट के अकॉर्डिंगली, तो आई विल रीच टू अ रेवेन्यू बी मॉडल इन जस्ट 3 months ऑफ टाइम। तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर चुके हैं। और आप ये भी सर, मेरी विवेक बिंद्रा के साथ हम लोग सेम कैबिन में ऑलमोस्ट हम 12-15 लोग मीटिंग डेली करते हैं, बट वो ना चिराग तले अंधेरा, आई कैन नॉट डिस्क्लोज माई बिजनेस आइडिया, और नौकरी से निकाल देंगे। तो वो वाला कंसर्न है। बट मेरे को ना फंडिंग फॉर मी फॉर सेकंड प्रायोरिटी, फॉर मी द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू हैव अ मेंटोरशिप टू बिल्ड अ कंपनी।
तो मैं ना मतलब इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू और टू इंटरेक्ट विद योर टीम मेंबर, आई एम इन नोएडा, कि मैं कहाँ पे, बिकॉज मैंने जॉब करी है ऑलमोस्ट फॉर 18 ईयर्स, तो मैं एक बिजनेस बिल्ड करने में शायद वीक हूँ। मुझे ये नहीं पता कि बिजनेस सिक्योर कैसे करना है, कैसे उसको बिल्ड करना है, कैसे उसको एम्पायर में कन्वर्ट करना है। मैं 15 लाख रुपए का बिजनेस पर मंथ रेवेन्यू डाल सकता हूँ 3 महीने में, लेकिन फिर उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसमें क्या गैप्स होंगे, कैसे मुझे उसको एज अ कंपनी फॉर्म करना है, एज अ फाउंडर कैसे अपने 2 डायरेक्टर को भी मोटिवेट रखना है, कितनी % इक्विटी उनको देनी चाहिए, क्या क्या मतलब वो सब चीजें मेरे को ना एक मेंटोरशिप चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं आपको एक सच बात बताऊं जी, मेंटोर कोई नहीं होता। मैंने भी बहुत कोशिश करी लोगों का मेंटोर बनने के लिए, पर खुद अपना हीरो खुद ही बनना पड़ता है, राइट। मेंटोर के दिमाग में, आपके दिमाग में मेंटोर के लिए जो एक्सपेक्टेशंस है वो कभी वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, और मेंटोर के दिमाग में जो आपके लिए एक्सपेक्टेशंस है ना, वो आप कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे आपको, और एंड ऑफ द डे वो खराब हो जाता है। इसीलिए मेंटोर से बढ़िया होता है कंसल्टेंट। कोई मेंटोर, फैंटास्टिक वर्ड सर। कंसल्टेंट क्यों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो पैसे लेगा और एक डिलीवरेबल देगा। मेंटोर को आप सर सर करोगे, है ना, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, और मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो आप मेरे चक्कर में अपना नुकसान करते चले जाओगे। या कोई भी मेंटोर जिसके पास वक्त नहीं है, लॉट ऑफ पीपल गिव मी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे किसी ने बोला 10 लाख रुपए ले लो सर, मेरे को 1 साल मेंटोरशिप दे दो, 100 घंटे देना बस। मैंने मना कर दिया। इट्स नॉट अबाउट मनी, या इट्स नॉट अबाउट कि मैं हेल्प नहीं करना चाहता या किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता। इट इज अबाउट, मुझे पता है कि मैं कभी भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज क्लियर डिलीवरेबल्स नहीं है, राइट। हाँ, आई कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट और एनीबडी कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट। आप उसको डिलीवरेबल बताओगे, जैसे आपने बताया, उसको आप नोटिफाई कर लो। अब आप बोलते हो कि मुझे एचआर के सारे प्रोसेस बताएं, कैसे मोटिवेट करना है एम्प्लॉइज को, आपको उसके कंसल्टेंट मिल जाएंगे। वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे और आपकी टीम को भी ट्रेन करेंगे। अब ये सारी प्रॉब्लम्स यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। मैं अपना बताता हूँ हम क्या करते हैं। वी एट स्टार्टअप लेन्स, हमारा एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, परम ध्येय जो है, वो है देश के अंदर, अपने भारत के अंदर 1 मिलियन जॉब्स, यानी 10 लाख, 10 मिलियन नहीं, 10 लाख जॉब्स, नौकरियां हम क्रिएट करें। 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट। और वो इसके थ्रू एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हुए, ये जब हम बात, व्हेन आई टेल दिस टू माय स्टाफ, रिपीटेडली, उनको वो बहुत अच्छा लगता है। दे फील कि भाई हम इम्पोर्टेंट हैं, पैसा तो दुनिया कमा रही है, राइट। जब उनको ये पता लगता है कि हम भी उसका पार्ट है, हम देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं, दे फील हैप्पी अबाउट इट एंड दे फील एक्साइटेड अबाउट इट। उनको अच्छा लगता है ये चीज, और वो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं। और पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन जब आप उनको बताओगे कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप उनको, हर किसी की एक इंपॉर्टेंस है, राइट। आज हम काम क्यों कर रहे हैं? हम काम रोटी कमाने के लिए तो सब कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को इंपॉर्टेंस भी चाहिए, राइट, अटेंशन भी चाहिए। सो इफ दीज थिंग्स, मैं सारा तो नहीं बता पाऊंगा आपको, बट आप जब काम करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आती जाएंगे, आप प्रॉब्लम्स नोट करो, और उस तरह के कंसल्टेंट्स बाजार में हैं, वो सब आपको हेल्प कर पाएंगे। तो वो दैट इज द बेस्ट वे। किसी मेंटोर के चक्कर में, मैं तो खुद अपना भी बता रहा हूँ, किसी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मेंटोर जो अच्छा है उसके पास वक्त नहीं है, राइट। और जो अच्छा नहीं है, जिसके दिमाग में आपसे इक्विटी लेना, पैसा लेने का मन में आ रहा है ना, वो आपको कुछ भला नहीं कर पाएगा, और वो किसी के दिमाग से कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो पाता until and unless you think yourself like a pilot of the plane, right? किसी से पूछेंगे तो वो डुबा देगा, गिरा देगा। आपको खुद ही करना है। you can learn, decisions have to be yours। और आप अगर खुद के decisions लेंगे, खुद तैरेंगे पानी में, खुद सीख जाएंगे, खुद आपको मगरमच्छ से भी लड़ना आ जाएगा सब। you have to experience it to become better। ये बहुत सच बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज देखा है लाइफ में। मुझे भी लगता था कि मुझे किसी से कोई सीखने को मिल जाए या कोई मुझे गाइड कर दे। सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग होती है, सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, और हर सर्कमस्टांसेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सो यू कैन गेट ऑल दोज जनरल गाइडलाइंस, वो तो आपको मिल जाएंगी। सेम एज जो बिंद्रा साहब के ना बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, वो हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, राइट। सब चीजें बहुत अच्छी हैं, पर हर जगह नहीं हो पाती, क्योंकि सबकी स्टोरी अलग है।
हर किसी का सिचुएशन बहुत अलग है, सो वी कैन नॉट से कि भाई उसमें वो भी फिट हो जाए. दैट इज व्हाई वी नीड टू एनालाइज द सिचुएशन. उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा. कुछ नहीं है, सिर्फ जितनी बार आप फेस करो. मैं तो देखो आपको मैं एक अपनी बात बता सकता हूँ, मैं ना फेलियर को कम से कम 5-6 बार डिस्काउंट कर लेता हूँ कि 5-6 बार तो फेल होना ही होना है, राइट. तो मुझे जब मेरे को पहला फेलियर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो बढ़िया, एक स्टेप तो आगे बढ़े. दूसरा आता है, तीसरा आता है, 5 तक तो मुझे लगता है नाउ आई एम एबल टू. और ऐसा नहीं है कि मैं फेल होने के लिए आई प्ले टू फेल. नो, व्हेन आई प्ले आई ऑलवेज प्ले टू विन. मैं इसलिए नहीं खेलता कि मुझे हारना नहीं है या मुझे फेल हो जाना है. आई ऑलवेज डू थिंग्स टू बिकम सक्सेसफुल. बट मुझे पता है बड़े बड़े नहीं कर पाए. थॉमस एडिसन है ना, बड़े बड़े नाम थे बहुत सारे, उनको भी 10-10 हजार बार फेल होना पड़ रहा है, किसी को 100 बार होना पड़ रहा है. तो दैट इज ओके व्हाइल वी आर एक्सपेरिमेंटिंग. इट इज नॉट कॉल्ड फेलियर, इट इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंट. इज एक्सपेरिमेंट. कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा. हाँ, जब वो चलेगा या जब कुछ निकल के आएगा जो अभी तक नहीं हुआ है, वो शायद बहुत अच्छा होगा. इनोवेशन टाइम होने वाला, तो मैं आपको इनोवेशन की डेफिनेशन अपनी बता के जा रहा हूँ. मेरे हिसाब से इनोवेशन सिर्फ 2 ही चीजों का इनोवेशन होता है, ओनली 2 थिंग्स, प्राइस एंड कन्वीनियंस, राइट. प्राइस सस्ता कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट का, देन आई विल कॉल इट इनोवेशन. एंड आप किसी भी चीज की कन्वीनियंस बढ़ा पाएंगे तो देन आई विल कॉल इट इनोवेशन. दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ डिसरप्शन. डिसरप्शन में ये 2 ही चीजें हैं. प्रोडक्ट पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, प्रोडक्ट सिमिलर होमोजीनियस बनाइए. एग्जांपल, आप मैगी नूडल्स बना लो जिसका स्वाद, इंग्रेडिएंट्स, लुक, फील, टेक्सचर सब ऐसा आता है जैसे कि मैगी नूडल्स, और आप उसको मैगी नूडल से 4 रुपया सस्ता बेचना शुरू करो. देखो सारी दुकान जो मैगी बना के बेचते हैं ना, वो सब आपसे खरीदना शुरू कर देंगे इन नो टाइम, बिकॉज सेम है, इंग्रेडिएंट्स भी सेम होने चाहिए. सो इफ यू आर एबल टू मेक दैट सिमिलर प्रोडक्ट, होमोजीनियस, सेम, राइट, बता के बेचो. ऐसे नहीं कि बोलो मैगी मैगी जैसा नाम दिखा दो. नो, टेल देम दिस इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट बट सिमिलर लुक, फील, टेक्सचर, taste, everything, price low, right, and convenience. This should be made available also. मिलना भी तो चाहिए. कोई चीज हम बना लेते हैं और मिल नहीं पाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है. सो कन्वीनियंस, कस्टमर तक, ग्राहक तक आपने वो पहुंचा दिया, सस्ता दे दिया जिसकी डिमांड ग्राहक को है. ठीक है, कुछ भी जो आप सुनते थे रोटी कपड़ा मकान के बिजनेस कभी बंद नहीं होते, उसी में कुछ भी कर लें, या किसी भी ऐसी चीज में जिसकी डिमांड है, और वही प्रोडक्ट जैसा आपने दे दिया, 100% चलेगा. 100%, कोई उसमें दो राह ही नहीं. अगर मार्केट बड़ी है तो हमेशा लुक एट द बिगर मार्केट साइज, जिसका मार्केट साइज बहुत बड़ा हो, और प्रोडक्ट होमोजीनियस, लीडर जैसा आपने प्रोडक्ट बना लिया. ज्यादा नहीं करने प्रोडक्ट्स, वो भी आपको नुकसान देंगे. मेक ओनली द प्रोडक्ट्स विच आर मेड बाय द लीडर्स एंड स्टार्ट सेलिंग फॉर अ लोअर प्राइस. इन केस दोज हु से कि मेरा प्रोडक्ट महंगा है और मैं बहुत बढ़िया हूँ, उससे बेटर हूँ, वो हमेशा नुकसान में जाते हैं, हमेशा, राइट. एक्सेप्शंस आर देयर. एप्पल हर कोई नहीं बन जाता, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो एप्पल इज एन एक्सेप्शन, बट जनरली मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स दे फेस lot of difficulties in selling their product when they try to educate. जो आपने शायद पढ़ा भी होगा कि कस्टमर को एजुकेट कर दो, पर मैं नहीं करता. टू बी ऑनेस्ट, आई नेवर एजुकेट. मैं उस पर दिमाग नहीं लगाता. जो ग्राहक को पता है फटाफट बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं, राइट. जैसे मैंने आपको भी बताया, चार्टेड अकाउंटेंसी सर्विस, लीगल सर्विसेज, हमने सब सस्ता कर दिया. जो क्योंकि उसको समझाने में भी ना जो कॉस्ट जाती है, जो टाइम पीरियड जाता है, दैट इज ऑल्सो आवर कॉस्ट. एक ही कस्टमर पे मैं 4 बार बात करके मैं समझा रहा हूँ 15-15 मिनट, तो मेरा 1 घंटा चला गया, राइट. वो कॉस्ट बचा लेंगे और उस कॉस्ट को सस्ता देके कवर कर लेते हैं. सो दैट इज व्हाट. टाइम इज ओवर, 2 बज गए, मेरी एक और मीटिंग है. आई एम थैंकफुल टू यू, ईच वन ऑफ यू. दिस इज थैंक यू सो मच. प्लीज हर बार आप जरूर आइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, एंड दिस इज एन ऑनर फॉर मी कि मैं आप लोगों को अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर पाता हूँ. तो सर एक्चुअली बस एक लास्ट चीज थी कि अगर सपोज मुझे अपना आइडिया आपसे शेयर करना हो, कि आपको आइडिया शेयर करना हो, आपका फीडबैक लेना हो कि क्या आप आगे चल सकता है, तो इज इट पॉसिबल, मतलब एट योर प्लेटफॉर्म? देयर इज अ देयर इज अ पर्सनल कॉल सिस्टम. आप वहां पर स्टार्टअप प्लेन्स की साइट पे जा सकते हैं. अच्छा, हाँ देखा मैंने. हाँ, 1500 रुपीज लगते हैं. पर्सनल कॉल आपको बुक हो जाएगी. वो भी बहुत ज्यादा नहीं ले पाता हूँ मैं, तो शायद आपको बहुत कम स्लॉट मिलेंगे.
तो ऐसा नहीं कि शायद इमीडिएट मिल जाएगा, बट आपको जरूर मिल जाएगा। एंड पीपल आस्क मी, मैं आपको बिना बताए तो आज पूछने लगे हैं कि भाई 1500 रुपए क्यों ले रहे हो, बात करने के पैसे क्यों ले रहे हो। तो बहुत सारी कॉल्स आती है, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, तो प्रायोरिटी भी तो देनी है ना। तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, इनफैक्ट उसका हमने बैंक अकाउंट ही अलग तो चैरिटेबल पर्पस में यूज करते हैं जो पैसा आता है, बट प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी। नहीं तो ऐसे तो कोई भी कॉल और कभी भी करेगा तो बात करते किस से कर पाएंगे। दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम और फील लाइक बुक दैट कॉल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एज पर द टाइम। अच्छा, कभी डेमो डे के लिए अपने आप को बताना हो कि डेमो डे में अटेंड करना हो या बताना हो, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन है सर? मतलब वो प्रिपरेशन तो मुझे मालूम है, सॉरी, उसके लिए एलिजिबल मतलब कैसे, कब हम उसके लिए अपॉइंटमेंट? देखिए, अभी तक हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये था कि 10,000 रुपए रेवेन्यू होना चाहिए, आप डेमो डे में मोस्ट वेलकम है। अब हम उसको भी एक और नए स्टेप पे जा रहे हैं। अब अभी हम इंक्यूबेशन खोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए हम आपको देंगे 10% की इक्विटी पे। वो भी हम नहीं रख रहे, वो इन्वेस्टर को देंगे। वी आर कमिंग अप विद दिस सिस्टम, बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। और शायद 10 लाख रुपए उसमें स्टार्टअप लेन्स भी लगाएगा, तो टोटल 20 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। 20% इक्विटी चली जाएगी, लेकिन उसके बदले में सब कुछ स्टार्टअप लेन्स की जो सपोर्ट का सिस्टम हम बना रहे हैं वो रहेगा। एंड दिस इज ओनली फॉर आइडिया स्टेज स्टार्टअप, जिनके पास सिर्फ आइडिया है, राइट? तो और अगर आप उस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, सो डू नॉट ओनली पार्टिसिपेट फॉर द फंडिंग, ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट आप ये सोच के करिए कि एज एन इकोसिस्टम एज अ होल हम जो स्ट्रक्चर आपको बना के देंगे शायद वो आपको आगे काम आए। फंडिंग तो नो डाउट, वी हैव द फंडिंग पाइपलाइन, पहले एंजल फंडिंग होगी, फिर वीसी फंडिंग होगी, और इट इज इन आवर गुड। तो 10 लाख रुपए हम भी अभी प्लान बना रहे हैं कि 10 हम डालेंगे, 10 इन्वेस्टर से डलवाएंगे, टोटल 20 लाख रुपए हम देंगे हर किसी फाउंडर को 20% इक्विटी पे, राइट? सो दैट एंड थिंग्स कैन बी वेरी केस टू केस बेसिस, राइट? यस, केस टू केस बेसिस, इवन पार्ट टाइमर्स। ये एक बहुत नोबल थॉट आया था मुझे, एंड आई डिड अ पोल फॉर दैट। मैंने सर्वे किया अपने लिंक्डइन पे डाल के कि भाई आप पार्ट टाइम में काम करना चाहेंगे अगर आपको 10 लाख मिले, और 700-800 लोगों ने अप्रोच करा। उन्होंने बोला कि साहब हम बिल्कुल करना चाहते हैं, हमें डर लगता है, हमें मौका नहीं मिल रहा, हम नौकरी के साथ साथ वो कर नहीं पाते, हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ से भी जाएं और वहां से भी जाएं, बिजनेस भी नहीं चला और नौकरी से भी गए तो फिर क्या करेंगे, राइट? सो वी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, लोगों को पता नहीं है, एक सिस्टम होता है स्टार्टअप में, उसको स्टेल्थ मोड बोलते हैं या स्टील्थ मोड, जो भी आप बोलना चाहे, हिडन। उसमें छुप छुप के कंपनी का नाम वाम बाहर नहीं करा जाता, लेकिन सब। और बैंगलोर में, सिलिकॉन वैली में भी बहुत सारे लोगों ने यूएस में ऐसे काम किया है, जॉब भी कर रहे हैं आईटी कंपनी में और साथ साथ अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जब चल पड़ता है तो बाहर ले आते हैं। एंड दिस इज गुड फॉर द कंट्री, देश के लिए बहुत अच्छी बात है, चाहिए देश को ये। क्यों? क्योंकि अब जब तक अगर हर बंदा नौकरी मांगेगा तो नौकरी आएंगी कहाँ से, राइट? तो ऐसा सोच बहुत जरूरी है कि सब ट्राई करें, जॉब में लोग ट्राई करें कि हम व्यापार करें, बिजनेस करेंगे। 4-5 लोगों को भी हायर अगर कर लिया ना, तो भी हम 5 टाइम्स जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, जो अभी हमारा करंट स्ट्रक्चर है, राइट? पैंडेमिक में बहुत बुरा हाल हो गया था, सबने देख लिया, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबको फंडिंग मिल जाएगी, बट एटलीस्ट बहुत सारों को मौका मिल जाएगा, राइट? कि वो पिच करके आए, फिर दोबारा कोई नया आइडिया स्टेज पे ही शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल टोटल आइडिया, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आइडिया लेके पिच कर रहे हैं। बट एक उसके अंदर चैलेंज है कि आइडिया जनता में जाएगा, वो पब्लिक, बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स विल बी देयर, दिस माइट गो टू आवर यूट्यूब चैनल, राइट? तो उससे और ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। और 10 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 लाख में होगा क्या, बट 10 लाख में भी बहुत सारे बिजनेस हो जाते हैं। इनफैक्ट 20 दे रहे हैं हम, 10 लाख रुपए आपको देंगे कैश में और 10 लाख रुपए देंगे काइंड में, कि आपकी वेबसाइट में, ऐप में, मार्केटिंग में, इन सब में लगा दिया। नहीं तो क्या है, 10 लाख रुपए कोई ऐसे ही खत्म ना कर दे, ऐसे भी होते हैं जो बच्चे आ जाते हैं। लेकिन सर अगर कोई प्रोडक्ट रेडी वाले स्टेज पे या अर्ली ट्रैक्शन वाले रेट पे, तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म है ना? अगर आप आइए, 10,000 रुपए रेवेन्यू, 2 सेगमेंट मैंने आपको बता दिए, आइडिया वाला अलग है, एंड दिस इज द करंट सेगमेंट जिसमें रेवेन्यू 10,000 होना चाहिए आपका मंथली, कम से कम। आप आइए, आपको डेट मिलेगी डेमो डे की, एक मैंडेट होगा साइन, उसमें हम लीड भी बन जाएंगे आपके। लीड बन गए तो हम अपने थ्रू तो फंडिंग कराएंगे, बाकी एंजल नेटवर्क्स, वीसी से भी फंडिंग जोड़ के उनको साथ में लाके आपकी फंडिंग कराएंगे। पहली फंडिंग आप 25 लाख रुपए टारगेट करिए, फिर 50, फिर 1 करोड़, फिर 2.5 करोड़ या 2 करोड़, एंड देन 3.5 करोड़, अप टू 500K।
राइट। $500,000 जाने के बाद फिर आपकी VC फंडिंग $1 million से शुरू होगी। इन दैट पर्टिकुलर टाइम यू नीड टू हैव अ प्लान। आपका ऐसा सोच ऐसी होनी चाहिए या मार्केट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आने वाले 5 साल में आप 750 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, रेवेन्यू क्रॉस कर दें। आपको वैल्यूएशन के हिसाब से $1 billion के वैल्यूएशन आने के चांसेस रहे। मैंने 10 टाइम्स का फैक्टर लिया है, बहुत ही प्रोग्रेसिव लिया है, ये मान के कि बहुत अच्छा है। तो 750 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू 5 साल में आएगा तो यूनिकॉर्न बन जाएंगे, और उसी बेसिस पे आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा दे देंगे। बहुत सिंपल सा है। Well noted, well noted. Man, I'll definitely approach you once I'll reach to a product ready stage. मैं आपको अप्रोच करूंगा सर। All right, thank you so much for joining in. This is For your Sushil Gupta valuable signing session. out. जय भारत। जय भारत।